پالیٹکس کی بات ہو جائے کیونکہ پالیٹکس میں بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے صورتحال۔ آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے اور JUIF کا کیا موقف ہے، کہاں تک کنونس کر لیا ہے ان کو، پھر حکومت میں کیا کوئی ڈر ہے یا پھر انہیں تشویش ہے اس بات پر کہ اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے الیکشن کا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس پر تجزیہ کاروں کی رائے جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاری۔ تو اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سعید قاضی صاحب کو، سینئر تجزیہ کار ہیں، جانا مانا نام ہے، سب جانتے ہیں۔ شوکت پراچا صاحب سینئر تجزیہ کار، سبھی جانتے ہیں، شو بھی کرتے ہیں اپنا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سعید قاضی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سعید صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان وزیر دفاع خواجہ آصف کا آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تشویش پہلے سے تھی اور ابھی بھی یہ تشویش ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا، اور الیکشن کا آڈٹ ہوگا تو ممکنہ طور پر کیا وہ سمجھ رہے ہیں اس ہونے کے بعد کیا نتائج اس کے آئیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دعا میری یہ ہے کہ لڑائی آگے نہ بڑھے، معاملات انتہائی سنگین بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ آڈٹ ہو گیا تو کس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ جی ماحول ہے، خدشات تو ہر ایک کے ہیں، گورنمنٹ کے نہیں ہیں، اپوزیشن کے بھی خدشات ہیں، اور خاص طور پر جو گورنمنٹ کے خدشات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، خط لکھے جاتے ہیں، اب ایک سائیڈ کہتی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دوسری سائیڈ کہتی ہے کہ نہیں وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو جو تقسیم ہے بیسیکلی تو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہمارے ہر شعبہ زندگی میں، اور وہی ہے عدلیہ میں۔ مثلا آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے آئین کے تحت حلف لیا ہے، میں نے کسی جو پرانی پریسیڈنٹس ہیں یعنی نظیریں ہیں عدالتی ان کے تحت حلف نہیں لیا۔ اور اگر عدالتی نظیروں کی بات کی جائے تو پاکستان کی عدلیہ انفارچونیٹلی عدالتی تاریخ کو اتنی روز روشن کی طرح نہیں ہے کہ وہ عدلیہ ہماری سرخرو ہو کر نکلی ہو۔ رائٹ فرام جسٹس منیر 1954 سے لے کر ثاقب نثار تک جو فیصلے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رہے، اور آج کی عدالت پہ بھی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بڑی تنقید کرتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو یہ کم از کم یہ خطرہ ہے کہ اگر گورنمنٹ 25 اکتوبر کے بعد عدلیہ کوئی ایسے فیصلے نہ دے دے جس میں ایک بڑی، اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت تھا کہ جی ٹریبیونلز بن رہے ہیں، ٹریبیونلز اپوزیشن کی مرضی کے بن رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے درمیان ایک رابطہ ہوا، اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی 4 آپ لگا دیں، الیکشن ٹریبیونل 4 آپ لگا دیں، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی آئین اس کے تحت چلیں گے یا آپ اس طرح سے سوری ٹو سے کہ بندر بانٹ ہوتی رہے گی۔ ایک قانون بنا، اسی پارلیمنٹ نے بنایا کہ آپ ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف سٹے دیتے رہے۔ تو جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین ہے، آئین کے تحت سب آئین کو دیکھیں، بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کل پرسوں ان کے ریمارکس تھے کہ وکلا بھی آئین نہیں دیکھ کے آتے، وہ وکلا قانون نہیں پڑھ کے آتے، وہ آ کے آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، اور پرانی جو پریسیڈنٹس ہیں جن کو عدالتی زبان میں جوڈیشل لینگویج میں پریسیڈنٹس کہا جاتا ہے، ہم ان کی مثالیں کہہ لیں، اگر نظیریں کوئی زیادہ مشکل لفظ ہے بہت سارے ناظرین کے لیے تو، لیکن ان نظیروں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے، فیصلے نہیں کیے جاتے، آئین جو ہے آئین بڑا لکھا ہے، واضح آئین میں ہم آئین کو دیکھ کے آگے چلیں گے۔ بالکل جی قاضی صاحب یہ بتائیے گا، اثر کیسر کا کہنا ہے کہ دسمبر تک حکومت ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، یہ دعویٰ کس بنیاد پہ وہ انہوں نے کیا ہے، اور کیا تحریک انصاف سے انہیں کوئی سگنل ملا ہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ خیر یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ معاملہ ہے۔ حکومت ہمیں ایک لہجے میں خط بھی نظر آتی ہے اور نظر بھی آتی ہے، مگر میں شوکت صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے میں ایک اور اینگل سے اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ کیا ہے اور اسے ہم اسے کیسے سمجھیں۔ تو جس طرح انہوں نے ابھی ایک حوالے سے اسی اینگل سے بات کی، بات یہ ہے کہ ہم ایک ڈس فنکشنل سسٹم میں رہ رہے ہیں، ایک ایسا سسٹم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اسد کیسر صاحب کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی، یا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس اکتوبر کے مہینے کے اواخر میں
कहीं जाके ये तरमीम हो जाएगी। तो क्या जो पाकिस्तान की जिंदगी है बाद अज तरमीम या बाद अज दिस हुकूमत, वो क्या मुख्तलिफ होगी इससे जो अब है? बात यह है कि एक रूलिंग एलीट मुसल्लत है हमारे ऊपर, जो कि बुरी तरह से आपस में बरसरे पैकार है, जो अपने पांव तले आइन को, कानून को रौंद रही है और सिस्टम चल नहीं रहा। मिसाल मैं आपको देता हूं कि भाई वो कौन सी ताकत आपके पास नहीं है जो आपको फेडरल एक अदालत दे देगी? वो कौन सी हरकत आप फरमा नहीं चुके इस आइन, इस एक अदालत के होते हुए? क्या कर लिया अदालत ने या हमने आपका, जब आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, या जब आपने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ हमने क्या बिगाड़ लिया आपका, जिस तरीके से आपने इलेक्शन करवाए? नजर आ रहा है ना इस पे। आप ज्यादा, मैं इसमें क्या तफसील, मैं किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ बड़ा मसला बन गया है कि इन पार्टियों से उठ के कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो बात यह है, एक ऐसा निजाम जो मफलूज हो चुका है, जो टूट फूट का शिकार है, जिसमें असल मसाइल जो है वो हमने जो है अडयाला जेल के पीछे फेंक दिए हैं और अडयाला को हमें पेश कर दिया गया है। मसला तो बिजली का बिल था, मेरे पेट्रोल की कीमत थी, मेरा रोजगार था, वो तो आपके पास है नहीं। आपके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके कारोबार और धंधे के लिए रोजगार है। आप IPP अपने बच्चों से भी करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। आप इस रियासत के बच्चे कुछ इदारों को बेच के, कल जो नौहा मुसद्दिक मलिक साहब ने पढ़ा कि हम इन इदारों के और अवाम के बीच से निकल नहीं रहे जी। आपने अब अपने फ्रंट मैन आगे रख के जो बच्चे कुछ इदारे हैं उनको भी अवामी मसाइल से हम आपने मैं अर्ज करता हूँ, 1 मिनट दे दीजिएगा। जी। मैं सवाल एक करता हूँ कि आपने क्या किया मेरे MCB के साथ, वही करेंगे आप मेरी स्टील मिल के साथ। तो बात यह है कि आप एक काम तसलसल से हो रहा है कि लूट सेल लगी हुई है जी, और इदारे आप कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन नहीं हो रहे हैं अवामी मसाइल पर। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो 25 तारीख है, इससे पहले 26 आ रही है, 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में आप इसको ऐसा होता देख रहे हैं? और जितना स्टेक लगा हुआ है इस वक्त हुकूमत की तरफ से, जैसे कहा जा रहा है कि 25 से पहले तो लाजमी लानी है, आईनी अदालत का क़याम होगा और उसके बाद की सूरत हाल क्या बनने जा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही है कि ये आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका भी फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? देखिए ना, काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं सारे, और इसी चीज को मैं तकसीम का नाम दे रहा था। देखिए ना, जब वजीर दिफा से हट के वो नून लीग के बड़े अहम लीडर भी हैं, जब वो ये कह चुके कि हम इस पॉसिबिलिटी को, जिस पॉसिबिलिटी का असद कैसर साहब ने जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस पॉसिबिलिटी के खात्मे के लिए हम हर हद तक जाएंगे। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, और गवर्नमेंट के पास अभी रूलिंग्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। नहीं तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुझे पता है, इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी हकायक सामने आ जाएंगे। पहले मैं जरा 26 आपने 26 वाली तक आप चलेंगे जरा, अभी मुझे 25 तक तो जाने दे, 25 तक जाए बात भी कर लेते हैं। तो तरमीम तो होनी है, और मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ लोगों से शो करते हुए बहुत सारी बातें हैं, वो भी नहीं कर पाते, ऑन द स्क्रीन हम भी नहीं कर पाते, लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड भी कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो मुझे तो यूं लग रहा है कि जो 20-21 तक ये तरमीम हो जाएगी, 25 तो मुझे दूर लग रहा है, जो 26 है वो 19 या 20-21 तक हो जाएगी। 26 मौलाना फजल रहमान साहब, हम खुद मिले थे, 8-10 लोग, हमारी मुलाकात हुई थी ऑन द रिकॉर्ड। तो उन्होंने फरमाया था कि हम आईनी तरमीम के मुखालिफ नहीं हैं, हमें कुछ की पॉइंट्स पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब हुकूमत दूर कर रही है या कहीं कंसीड कर रही है। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब भी आईनी तरमीम के एज सच नहीं है मुखालिफ, जैसे PTI है। अब PTI मुखालिफ है, हर काम जो हुकूमत करे की अपोजिशन के तौर पर वो उसकी मुखालफत करेंगे, हालांकि चार्टर ऑफ
वो लिखा हुआ था। अब मैं आपके जरूर उस नुक्ते के पे आता हूँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला बताती है 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर 180 नहीं मिलते उनको, फर्ज किया वो 140-50 तक आ जाते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप खुद देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। और जो कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल बने पंजाब में, स्पेशली जब ट्रिब्यूनल बन रहे थे, क्योंकि सारा मसला तो पंजाब का है, ये पिंडी इस्लामाबाद का मसला है, सेंट्रल पंजाब का मसला है, साउथ पंजाब का मसला है, वो पूरी तरह पंजाब फोकस है। अब उसमें 8 ट्रिब्यूनल जो बनने थे, अगर 8 के 8 फर्ज किया, वो उन्हीं की ख्वाहिश पे या जैसा वो चाह रहे थे, ख्वाहिश न कहें, जैसा उन्होंने फोकस किया हुआ था, अगर वो बन जाते तो गवर्नमेंट को एक थ्रेट होना था। ये नहीं होता कि सर पे एक चीज आ गई तो फिर कोई उसका काउंटर करता है, बल्कि जब आप एक थ्रेट परसेप्शन और इंटेंट देख लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट एक्ट कर रही थी। और वही हुआ कि 4-4 की आप डिवीजन हो गई। असल वो जो कानून बना कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल में बन सकते हैं, वो किसी जरूरत के तहत बिल्कुल लिंगर ऑन किया जा रहा है, लिंगर ऑन किया जा रहा है बिल्कुल सूरत हाल को किसी सूरत। काजी साहब ये बताइएगा, क्या आईनी तरमीम किसी ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही है? खबरें ये हैं कि पहले मरहले में तो आईनी अदालत के लिए तरमीम होगी, फिर जजेस का इंतखाब, उनकी सिलेक्शन जो है वो सेकंड मरहला होगा। तो काजी साहब बताइएगा इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आईनी तरमीम ये क्या ब्रेक थ्रू करेगी? मैं बेसिकली है क्या बात ये है कि ये बुनियादी तौर पर इंटेंशन क्या है कि भाई देखें, अदालत में फैसले हमारी मर्जी के नहीं आते। इन्होंने जो भी तरमीमात पहले की हैं या जो इन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल या कानून बनाते रहे, वो क्या थे कि भाई एक पहले कानून था कि ये तो देखें ताकि उमर-अता बंदियाल साहब बेंच ना बना सकें, और फिर जब वो गले में पड़ गया तो फिर एक और बिल आ गया कि नहीं जी आप तो काजी फाइज ईसा साहब बनाएंगे और वो अपनी मर्जी से कमेटी का मेंबर रखेंगे। उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया। मसला क्या है? देखिए, मैं एक बुनियादी मसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ जिसपे शौकत पराचा साहब ने भी बात की है। वो ये है कि ये सिस्टम इनसे चल नहीं पा रहा, इनके हाथों से रेत फिसल रही है, इसको काबू कैसे करें? अब इसमें मसला क्या है? देखें, मैं एक किसी दानिशवर की बात करता हूं कि हुक्मरान तबके को एक ऐसे ऐत का सामना करना पड़ जाता है। वो कहते हैं ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, माशाल्लाह ठेके भी दे रहे थे, लिए भी जा रहे थे, कुछ रौला नहीं था। अब रौला बन गया। अब ये रौला किसी तरमीम से ठीक नहीं होगा, किसी तरमीम की वजह से जो है ये बदलेगा नहीं। जिस तरह मैंने अर्ज किया, एक सिस्टेमिक फेलियर है जी। एक सिस्टम बैठ गया है, चल नहीं रहा, और अंग्रेज साहब को हम कहीं से बैंक से निकाल के पकड़ लाए। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से वन बाय वन, वक्त भी हमारे पास वक्त की किल्लत है। देखें, हमने देखा अगर हिस्टोरिकली स्पीकिंग, आप देखिए इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज होने का, फिर वो ज़ाहिर तहरीक चलाई और फिर वो डिस्प्यूटेड हो गए, फिर डोगर कोर्ट्स किया आपके सामने सारी मिसाल, फिर उसके बाद साकिब निसार साहब जुडिशल एक्टिविज्म की उन पर बात हुई, और फिर उमर-अता बंदियाल साहब। अब आने वाले जज के बारे में दो राय बन जाती हैं, डिस्प्यूटेड बना दिया जाता है, फिर वो एज अ चीफ जस्टिस जब वो सर्व कर रहा होता है तब भी हम दो ग्रुप्स देख रहे होते हैं, एक प्रो और एक उसके अगेंस्ट। लेकिन अब की जो सूरत हाल हमने देखी है जुडिशरी के अंदर भी, आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, खतो किताबत और ये सारी चीज़ें, तो अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, आप क्या मसाइल देख रहे हैं? क्या मजीद पेचीदा होती जा रही है सूरत हाल? दोनों आप जरा अपना तज्जिया दीजिएगा। अगर आप मुझे कह रहे हैं जी काजी साहब, पहले आप दे दीजिए फिर पराजा साहब। देखिए, बात यह है कि पहले तो मुझे बताएं कि एक पार्टी की तरफ से जब बयान आ रहा था कि जी हमारे लीडर तो तब आएंगे जब फलां आदमी फलां सीट पे बैठ जाएगा, ये सुना ना मैंने और आपने, ये इस पे तौहीन अदालत लग जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे लिए तो सारे जज बराबर हैं। मंसूर अली शाह साहब भी बड़े मौजूद हैं, काजी फाइज साहब भी बड़े मौजूद हैं, मगर ये क्यों बार बार कहा जा रहा था? और आज क्या लड़ाई क्या है, इंसिस्टेंस क्या है कि भाई एक शख्सियत को आप जो है वो कंटिन्यू करवा दे तो फिर हम बैठेंगे? भाई आप 24 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं या एक आदमी की मरूने मेहनत है? आप ये क्यों करना चाहते हैं? हर चीज, हर एंगल, हर कोशिश इशारा है इस तरफ कि इनसे मामला नहीं चल रहे।
अभी ये जो अभी अब थोड़ी देर पहले आपने पराचा साहब से बात की, खोल लें ना, फॉर्म 45 खोल लें, तो आप ठीक कहते हैं। इनमें से कौन होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर ये खुल जाए तो जो बंदे हुक्मरान हैं, मुमकिन है अगर कानून रूबा अमल हो तो अंदर हो जाए, तो वो अदल हो जाए। बिल्कुल जी। शौकत साहब, आप क्या कहेंगे इस पे, अगर जल्दी से एक खुलासा दे दें। देखें ना, काजी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि क्यों इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाता है। यही इंडिविजुअल तो किसी वजीर आज़म को फांसी दे देते हैं। यही इंडिविजुअल जिनका नाम चीफ जस्टिस होता है, वो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट 3 सेकंड की सजा देकर वजीर आज़म को घर भेज देते हैं। वो दूसरे वजीर आज़म को घर भेजने के लिए कभी JIT बनाते हैं। तो मसाइल तो रहे हैं ना हमारे, और इन्हीं मसाइल के लिए फिर आगे लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो स्पेसिफिक आपने सवाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, लेकिन आईनी अदालत में ये जो चीजें हैं, ये फिर आईनी अदालत अगर बन जाएगी और जब बन जाएगी तो ये पॉलिटिकल मसाइल वहां चले जाएंगे। अब उसमें पहला चीफ जस्टिस कौन तैनात करेगा, वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर करेगा या जुडिशल कमीशन। जो मौलाना साहब की तजवीज़ है, वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी ने गन पॉइंट पे पार्लियामान के अख्तियार भी जजेस की अपॉइंटमेंट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए थे। तो इस जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है, उसमें पार्लियामानी कमेटी ऑन जजेस एंड जुडिशल कमीशन, इनको मर्ज करके एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें पार्लियामान की आवाज भी हो और अदलिया की। लेकिन देखिए, आपने तो पार्लियामान की आवाज भी, है तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किसी और वक्त हम इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त की किल्लत है। सईद कायद, आपने वक्त दिया। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया।